ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपिरेशन। ये पढ़े थे ना ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन होता क्या है? हाउ यू कैन डिफाइन ट्रांसपिरेशन? तो ट्रांसपिरेशन जो होता है, इट इज लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, थर्ड, ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर, it is loss of water from aerial parts of plant. It is loss of water from aerial parts of plant in form of water vapor. It is loss of water. It is loss of water from aerial parts of plant in form of water vapor. ठीक है, हम ट्रांसपिरेशन को ब्रॉडली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व। अगर स्टोमेटा है तो स्टोमेटल, ठीक है, और अगर लेंटिसल है तो लेंटिकुलर, और अगर क्यूटिकल से हो रहा है तो क्यूटिकुलर। थर्ड वन, ट्रांसपिरेशन इज ब्रॉडली डिवाइडेड into transpiration is broadly divided into 3 different types. Transpiration is broadly divided into 3 different types on the basis of structure involved, on the basis of structure involved, that is stomatal. The structure involved is stomata, lenticular, that is lenticel, and cuticular, that is cuticle. कॉल आ गया था, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, तो वही मैं बता रहा था कि जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, दैट इज स्टोमेटल, लेंटिकुलर एंड क्यूटिकुलर। ठीक है, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अगर स्टोमेटा इन्वॉल्व है तो हम इसको कहते हैं स्टोमेटल, अगर लेंटिसेल इन्वॉल्व है तो हम लोग इसको कहते हैं लेंटिकुलर, और अगर क्यूटिकल इन्वॉल्व है जिसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकुलर। तो ये 3 टाइप का ट्रांसपिरेशन। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें, अगर हम इन तीनों को देखें, ठीक है, तीनों टाइप के स्ट्रक्चर को, तो मैक्सिमम जो ट्रांसपिरेशन होता है इट इज थ्रू स्टोमेटा। तो 95% जो वाटर का लॉस है इट इज थ्रू स्टोमेटा। ओके, थर्ड, most of the water is lost through stomata. Most of the water is lost through stomata. Most of the water is lost through stomata up to 95%. Up to 95. ठीक है, अभी जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन है, ठीक है, ये बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स से अफेक्ट होते हैं। वेरियस इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट्स दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये इंटरनल फैक्टर को हम लोग प्लांट फैक्टर भी कहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर तो एक्सटर्नल फैक्टर। थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, rate of transpiration is affected by
various internal and so its heading is transpiration. Heading is transpiration. देखिए it is loss of आज शुरू से ही करा रहा हूँ. It is loss of water. It is loss of water from aerial parts of plant. It is loss of water from aerial parts of plant in form of water vapor. In form of water vapor. In form of water vapor. Next one. It is broadly divided into. It is broadly divided into three different types. It is broadly divided into three different types on the basis of structure involved in the process. On the basis of structure involved in the process. First, stomatal. First is stomatal. Second, lenticular. Lenticular. And third is cuticular. Stomatal, lenticular, and cuticular. So stomatal, next one लिखिए. Mainly transpiration takes place through stomata. Mainly transpiration takes place through stomata up to 95%. Up to 95%. अगर हम ट्रांसपिरेशन को देखें तो जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है इट इज अफेक्टेड बाय सेवरल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर को हम लोग प्लांट फैक्टर भी कहते हैं बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद प्लांट्स. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन is affected by rate of transpiration is affected by various internal and external factors. Various internal and external factors. Internal factors are also referred as. Internal factors are also referred as plant factors. Internal factors are also referred as plant factors. Internal factors are also referred as plant factors. Okay. Now write down. Heading internal factors. Internal factors. First लिखिए. Number and distribution of stomata. Number and distribution of stomata. पहले लिख लीजिए फिर मैं सब समझा दूं. ठीक है. Second, percentage open stomata. Next, water status of plant. Water status of plant. Next, shape of canopy. Shape of
canopy, etc. Number and distribution of stomata, percentage open stomata, water status of plant, shape of canopy. ठीक है, अब ये है क्या, देख नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एनाटॉमी बताया था कि डाइकॉट लीफ में अपर एपिडर्मिस स्टोमेटा जनरली एब्सेंट होता है, लोअर पे मेनली प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अगर मान लो स्टोमेटा अपर सरफेस पे ज्यादा है, ऑब्वियसली वहां से वाटर लॉस ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। देन परसेंटेज ओपन स्टोमेटा, मान लो 100 स्टोमेटा है किसी प्लांट में, 100 में से कितना स्टोमेटा ओपन है उस समय में, व्हाट परसेंटेज स्टोमेटा इज ओपन, दैट विल डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये कम है कि ज्यादा है, ज्यादा ओपन है ज्यादा ट्रांसपिरेशन, और कम ओपन है तो कम ट्रांसपिरेशन। देन वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, वाटर स्टेटस मतलब वाटर का अवेलेबिलिटी है कि नहीं प्लांट पर, अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा, और अगर वाटर अवेलेबल है तो प्रॉब्लम नहीं। देन कैनोपी से देखते ना, ट्री का जो ऊपर ऊपर कवर रहता है दैट इज कैनोपी, तो कैसा कैनोपी है, ठीक है, कैनोपी बहुत बड़ा है तो लीफ का नंबर ज्यादा होगा, तो वैसे स्टोमेटा का भी नंबर ज्यादा होगा, तो वैसे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। परसेंटेज ओपन स्टोमेटा का मतलब होता है बेटा कि जितना भी स्टोमेटा उसमें कितना परसेंट स्टोमेटा जो है वो ओपन है, ठीक है, ओके, क्लियर है ना। नेक्स्ट लिखिए एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, लाइट एक्सेट्रा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, लाइट एक्सेट्रा ना। अब देखो यार, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर ड्राई होगा, तो एयर में मॉइस्चर कम रहेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। अगर मान लो ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब वाटर सैचुरेटेड, ट्रांसपिरेशन इज डिफ्यूजन, तो वाटर अगर एयर ऑलरेडी सैचुरेटेड है वाटर से तो डिफ्यूजन क्या होगा, कम हो जाएगा वाटर का, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई ये पॉइंट। इफ ह्यूमिडिटी इज हाई देन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी लो, क्योंकि लीफ से जो वाटर वेपर एस्केप करेगा तो वही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में तभी तो एस्केप करेगा, तो वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो है नहीं, क्योंकि एयर इज ऑलवेज सैचुरेटेड विद वाटर। देन विंड स्पीड, अगर मान लो ऐसे कोई लीफ सरफेस है, यहाँ स्टोमेटा है, हवा यहाँ से फास्ट मूव कर रहा है, तो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर विल बी फास्टर, ठीक है, तो जितना फास्ट मूव करेगा उतना वाटर का रिमूवल फास्ट होगा, उतना रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में आई है, ओके। इसमें जो सबसे इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आता है टेम्परेचर और विंड स्पीड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है ट्रांसपिरेशन, हायर द टेम्परेचर हायर द विंड स्पीड हायर विल बी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ह्यूमिडिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, हायर द ह्यूमिडिटी लोअर विल द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये लाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बहुत डिटेल में नहीं दिया लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई, अगर ब्लू लाइट प्रेजेंट है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो हाई होगा। ऐसा क्यों होता है, व्हाई सच थिंग हैपन, बिकॉज ब्लू लाइट प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, तो अगर ब्लू लाइट है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, क्यों, बिकॉज ब्लू लाइट प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओके ना, थोड़ा डाउन। एंटी ट्रांसपेरेंट अलग चीज होता है, अभी बताऊंगा, छोड़ दो, क्यों परेशान हो रहे, थोड़ा डाउन। क्या बता, हाँ, ब्लू लाइट
Write down. Blue light promotes rate of transpiration. Blue light promotes a rate of transpiration as it promotes opening of stomata. As it promotes opening of stomata. Okay. Now, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको स्टोमेटा का डायग्राम बताया, ठीक है। ब्लू लाइट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ब्लू लाइट रिसेप्टर होता है स्टोमेटा के पास, क्रिप्टोक्रोम, ठीक है। आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, तो खाली याद रखिए कि ब्लू लाइट जो है स्टोमेटा के ओपनिंग को प्रमोट करता है, बस इतना ही आपके लिए जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी, ठीक है, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा इससे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर अब इसको पहले समझिए, आपको याद होगा तो मैंने आपको ऐसा स्ट्रक्चर बताया था। ये हमारा स्टोमेटल पोर था, ठीक है। देन वी हैव टू किडनी और बीन शेप गार्ड सेल, ठीक है। देन वी हैव सब्सिडियरीज, ठीक है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको बताया था। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि वॉल ऑफ गार्ड सेल टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर is thicker than wall away from the stomata, ठीक है। Okay. Wall of guard cell towards the stomatal pore is thicker than wall away from the stomatal pore. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन guard cell radially elongated cellulosic microfibrils are present, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ दोबारा सुन, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है दैट इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपिरेशन। अगर स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। एंड दिस स्ट्रक्चर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हाउ? नाउ it is the turgidity of guard cell which will determine whether stomata will open or close. अगर guard cell खुल गया, swell कर गया, then the outer wall which is thin will bulge out, ये ऐसे करेगा, and as a result this thick inner wall takes a crescent shaped structure or becomes crescent shape. Okay, it will become crescent shape and that results in opening of stomata, ठीक है। गार्ड सेल का टर्जिड डिटरमाइन करेगा कि स्टोमेटा ओपन है क्लोज। अगर गार्ड सेल टर्जिड है तभी स्टोमेटा ओपन होगा, अगर गार्ड सेल फ्लासिड है तो स्टोमेटा ओपन नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि अगर मान लो गार्ड सेल के अंदर पानी आया, ठीक है, तो मैंने कहा कि वॉल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन, तो थिन है तो वो क्या होगा, ऐसे बाहर की तरफ बल्ज आउट करेगा, खुलेगा। इसके कारण क्या होगा, जो थिक वॉल है इट विल टेक a shape of crescent and that results in opening of stomata. Plus ये जो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स है दे आर रेडियल elongated not longitudinally, तो इसको क्या करेगा, पुल करेगा and that help in opening of stomata. समझ में आया ये पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया सबको? लिख लो, अगर नहीं समझ में आया दोबारा समझा दूंगा। राइट डाउन। इट इज द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, इट इज द टर्जिडिटी ऑफ guard cell which determines
which determines opening and closing of stomata, which determines opening and closing of stomata. When guard cell becomes turgid, when guard cell become turgid, the thin outer wall of guard cell bulge out. Thin outer wall of guard cell bulge out. As a result, inner wall becomes crescent shape. As a result, inner wall becomes crescent shape. Which results in opening of stomata. Which results in opening of stomata. Next one, लिखिए. Radially elongated cellulosic microfibrils. Radially elongated cellulosic microfibrils also help in opening of stomata. Also help in opening of stomata. तो स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग के बहुत सारे थ्योरी. अगर उसको पुल करेगा यार, रेडियल इलॉन्गेटेड, अगर लॉन्गिट्यूडनली होता तो ऐसे खींचता ना. रेडियल इलॉन्गेटेड ऐसे पुल करेगा, ऐसे खींचेगा तो खुल जाएगा. ठीक है ना. तो स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बहुत सारे थ्योरी है. एनसीईआरटी में तो एक भी थ्योरी नहीं, लेकिन एक जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वो हमें पता होना चाहिए. मेनली उसका जो क्वेश्चन अभी तक आया है, मैकेनिज्म आपसे कोई नहीं पूछता, आपसे उसका नाम ही पूछा जाता. ठीक है, तो मैं नाम भी बता दूंगा और मैकेनिज्म भी थोड़ा समझा दूंगा, बट मैकेनिज्म में दिमाग नहीं लगाना. आपसे मैकेनिज्म कभी कोई पूछेगा नहीं. ठीक है. राइट ऑन हेडिंग, थ्योरीज ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग. थ्योरीज ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग. हेडिंग इज theories of stomatal opening and closing. तो बहुत सारी थ्योरी है जो हम दिमाग में लाएंगे. हमारे लिए एक दो का नाम इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे. ठीक है. मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज K plus form theory और ABA theory. ABA stands for abscisic acid. It is a PGR. और hydroactive opening and hydropassive closing theory और लेविट थ्योरी, क्योंकि इसको लेविट ने दिया. ये सारे नाम इसी के. K plus pump theory और ABA theory, that is abscisic acid theory,
और हाइड्रोएक्टिव ओपनिंग एंड हाइड्रोपैसिव क्लोजिंग थ्योरी और लेविट्स थ्योरी। ठीक है, तो देखो इससे क्वेश्चन क्या आता है, तो पूछते हैं आपसे कि कौन सा एलिमेंट जो है स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इन्वॉल्व है, तो के प्लस। कौन सा पीटीआर स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इन्वॉल्व है, तो केटीए। जो स्टोमेटा का ओपनिंग का प्रोसेस है इट इज हाइड्रोएक्टिव, मतलब एनर्जी यूज होता है, और जो क्लोजिंग का प्रोसेस है वो हाइड्रोपैसिव है, मतलब बिना एनर्जी के होता है। या सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी किसने प्रपोज किया था, तो लेविट ने प्रपोज किया। ये सारे नाम है इस थ्योरी, लिख लिया सबने। लिख लिया, ओके ना। अब हम लोग ना इसको थोड़ा सा ओपनिंग क्लोजिंग को मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ डायग्राम समझाऊंगा। मर्जी है आपकी, आपसे मैकेनिज्म कोई पूछेगा नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बड़ा आपको बड़ा रफ सा मैं बता रहा हूँ। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये गार्ड सेल, एक गार्ड सेल है, हम ओपनिंग की बात करें, ठीक, वी टॉकिंग अबाउट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा में क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट, ठीक है। नाउ दिस स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, ठीक है, ओके। This malic acid breaks into two parts, that is malate ion and H plus ion, ठीक है। इन दो पार्ट में ये ब्रेक करते हैं। अब होता क्या है कि on membrane of this guard cell we have a K plus H plus pump। जहां भी पंप वर्ड यूज हुआ मतलब एनर्जी यूज हुआ, ओके। So now what will happen, this pump will pump H plus towards the outer side and K plus towards the inner, ठीक है। और जैसे कि हमने यहाँ कहा पंप है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। सो देयर विल बी यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी है, ठीक है। एटीपी यहाँ यूज हुआ। अब क्या है, ये जो के प्लस अंदर आए, ठीक है, ये जो के प्लस अंदर पंप हुआ, दिस के प्लस विल बाइंड विद दिस मेलेट आयन टू फॉर्म पोटेशियम मेलेट, ठीक है। एंड नाउ दिस पोटेशियम मेलेट इज स्टोर्ड इन वैक्यूम, ओके। तो इसमें आ गया। अब जब वैक्यूल में पोटेशियम मेलेट आया, इट इज अ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ा, तो जब यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन, वाटर पोटेंशियल हियर विल डिक्रीज बिकॉज़ देयर इज इंक्रीज इन सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, सराउंडिंग से वाटर जो है वो पैसिवली अंदर जाएगा, ठीक है, वाटर एंटर करेगा, और वाटर जब इसके अंदर एंटर करेगा तो दिस गार्ड सेल विल बिकम चार्ज्ड एंड स्टोमेटा विल ओपन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यूज हो रहा है इसलिए इसको हाइड्रोएक्टिव ओपनिंग कहते हैं। कुछ समझ में आया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझ लो। स्टार्च है गार्ड सेल में, इट इज कन्वर्टेड टू मैलिक एसिड, ठीक है। दिस मैलिक एसिड ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स, दैट इज मैलेट आयन H plus। On membrane of guard cell we have pump K plus H plus pump, which will pump this H plus outside and K plus inside. Malate ion will bind with this K plus ion to form potassium malate, which is stored in vacuole of guard cell, ठीक है। अब जब इसके अंदर ये स्टोर हुआ, तो स्टोरेज से क्या होगा, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, तो वाटर विल passively enter inside the guard cell and will make this guard cell turgid and stomata will open। समझ में आया ना। अब देखो, अब हम लोग क्लोजिंग की बात करते हैं, ठीक है। कोई आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझने के लिए बता दे रहा हूँ।
क्लोजिंग की बात करें स्टोमेटा, तो स्टोमेटा कब क्लोज होगा? व्हेन देयर इज वाटर स्ट्रेस, जब पानी कम हो। तो अगर वाटर स्ट्रेस है, ठीक है, तो जब भी स्ट्रेस कंडीशन आता है, प्लांट जो है एबीए प्रोड्यूस करता है, एब्सिसिक एसिड। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रिफर्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, दैट विल स्टडी इन लास्ट चैप्टर ऑफ दिस क्लास, 11th class. Okay, so this water stress will result in production of ABA, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। अब ये ABA क्या करेगा, ठीक है, ये जो ABA है, इट विल, तो मैंने क्या कहा कि क्लोजिंग के टाइम में वाटर स्ट्रेस के कारण क्लोज होगा, ठीक है। अब वाटर स्ट्रेस होगा तो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ABA, ABA will be produced and it will alter the permeability of membrane, membrane permeability will change, ठीक है ना। अब जब मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी चेंज होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा कि ये जो वैक्यूल में, ये जो हमारा वैक्यूल था, इसके अंदर जो हमारा पोटेशियम मेलेट था, ठीक है, इट विल बी विथड्रॉ, तो पोटेशियम मेलेट बाहर आ गया, ठीक है। क्या आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? क्यों आवाज नहीं आ रही भाई? आ रही है? ओके, तो मैंने कहा जब क्लोजिंग का टाइम आता है तब क्लोज होता है स्टोमेटा, जब व्हेन देयर इज वाटर स्ट्रेस, ठीक है, वाटर का स्ट्रेस हो, ठीक है। तो जब वाटर का स्ट्रेस होगा, ठीक है, तो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ABA, ठीक है, ठीक है, ABA का प्रोडक्शन होगा, इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन। नाउ इट विल अल्टर द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो है उसका परमेबिलिटी को अल्टर कर देगा, चेंज कर देगा मतलब। अब ये जो पोटेशियम मेलेट यहाँ स्टोर हुआ था ये विड्रॉ हो जाएगा वैक्यूल से, ठीक है, एंड नाउ दिस ब्रेक्स इनटू K प्लस आयन एंड मेलेट आयन, ठीक है। नाउ दिस K प्लस विल फ्रीली डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी चेंज हो गया है तो K प्लस अपने आप बाहर चला जाएगा एंड H प्लस विल कम इनसाइड द guard cell, and this malate and H plus will combine to form malic acid, which gets converted into starch, ठीक है। Starch is not soluble in water, it is not a solute, it is insoluble in water, okay। So अब ये starch जो है insoluble है, तो क्या होगा, यहाँ पे solute concentration कम हो गया, तो as a result what will happen here, water potential will increase, as a result water will move out of the guard cell and this guard cell will become flaccid and stomata will open। यहाँ पे गार्ड सेल क्या हुआ था, टर्जिड हुआ, ठीक है, और यहाँ पे फ्लासिड हो गया तो स्टोमेटा विल ओपन, ठीक है, एंड सॉरी यहाँ पे फ्लासिड हुआ तो स्टोमेटा विल, अरे H प्लस या सराउंडिंग सब्सिडरी सेल से ले लेगा, क्या दिक्कत है? कुछ भी हवा से नहीं आता है, सब कुछ होता है वहां, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये फ्लासिड हो गया, स्टोमेटा क्लोज हो गया। मैकेनिज्म नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट योर लेवल, बट आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बनाना है तो जल्दी से बना लीजिए ना, मैं इसको बोर्ड को साफ कर रहा हूँ। ये जो ट्रांसपिरेशन है जो प्लांट्स में होता है, ये प्लांट के लिए जरूरी भी है और हार्मफुल भी है। जैसे बहुत सारे फंक्शन ट्रांसपिरेशन के बिना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन हो गया तो इट कैन लीड टू डेथ ऑफ प्लांट, एंड दैट्स व्हाई ट्रांसपिरेशन इज रिफर्ड एज नेसेसरी एविल, मतलब ऐसा शैतान जिसकी जरूरत है प्लांट को। रेड ट्रांसपिरेशन इज रिफर्ड एज
transpiration is referred as necessary evil. Transpiration is referred as necessary evil. It is considered as a compromise. It is considered as a compromise for photosynthesis. It is considered as a compromise for photosynthesis. Okay. Because first it creates transpirational pull. First लिखिए, it creates transpirational pull. It creates transpirational pull for absorption and transport in plants. For absorption and transport in plant. Next लिखिए. It creates transpirational pull which helps in absorption and transport in plants. ठीक है, पहला. दूसरा पॉइंट लिखिए. It helps in maintaining shape and structure of the plant. It helps in maintaining shape and structure of plant by keeping plant cells turgid. By keeping plant cells turgid. Next लिखिए. It supplies water for photosynthesis. It supplies water for photosynthesis. It helps in transport of mineral nutrients. It helps in transport of mineral nutrients from soil to different parts of plant. From soil to different parts of plant. Next. It helps in lowering leaf temperature. It helps in lowering of leaf temperature by 10 to 15 degrees centigrade. It helps in lowering of leaf temperature by 10 to 15 degrees centigrade by evaporative cooling. Evaporative cooling so that photosynthesis can be carried out. So that photosynthesis can be carried out efficiently. So that photosynthesis can be carried out efficiently. क्या है कि लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, हमें पता है. अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस एफिशिएंटली कैरिड आउट नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Most of the water absorbed by plant
is lost through transpiration, only 1% of water absorbed by plant is utilized during photosynthesis. Only 1% of water absorbed by plant is utilized during photosynthesis. Next point लिखिए. High amount of humidity in tropical rainforest is due to high rate of transpiration, अभी इसके बाद चैप्टर में जब फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे दो तरह का कार्बन फिक्सेशन, तीन तरह का होता है, इसे दो मेजर, एक होता है C3 पाथवे, एक होता है C4 पाथवे. ये हम लोग क्या होता है C3 C4 हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर में. C3 वाले में क्या है, पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है. यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है. तो ये कहा जाता है कि इवोल्यूशन ऑफ C4 pathway for photosynthesis or for carbon fixation is mainly in order to maximize the availability of CO2 at its site of fixation and to minimize the loss of water. इस चीज का कौन सा पॉइंट भाई? पर फोटोसिंथेसिस में C3 और C4 पाथवे होता है, ठीक है. तो कहा जाता है कि जो इवोल्यूशन ऑफ C4 पाथवे है इन प्लांट्स is mainly in order to maximize the availability of CO2 at its site of fixation and minimize the loss of water during this process. जब आप कंपेयर करोगे तो C4 प्लांट्स जो होते हैं they require half the amount of water with respect to C3 plant in order to fix the same amount of CO2. अगर C3 और C4 प्लांट को आप कंपेयर करोगे तो C4 प्लांट जो होता है उसमें जितना CO2 फिक्स करने के लिए वाटर चाहिए वो आधा है उतना ही कार्बन के लिए जितना कि C3 प्लांट में चाहिए, मतलब C3 में डबल चाहिए. थोड़ा डाउन. evolution of C4 pathway of carbon fixation in plants, evolution of C4 pathway of carbon fixation in plant is mainly in order to maximize the availability of CO2 at its site of fixation and minimize the loss of water. Full stop. C4 plant requires, इसी के आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद, C4 plant requires half the amount of C4 plants require half the amount of water to fix same amount of CO2 with respect to C3 plant.
विथ रिस्पेक्ट टू C3 प्लांट। ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, बट ये इसी चैप्टर में इन्होंने मेंशन कर रखा है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखिए एंटी ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट एंटी ट्रांसपेरेंट। are those substances are those substances which are those substances which promote partial or complete closure of stomata, which promote partial or complete closure of stomata, thus helps in regulating rate of transpiration, thus helps in regulating rate of transpiration। ठीक है, फर्स्ट लिखिए ABA और abscisic acid। ABA और abscisic acid, it promotes closure of stomata, it promotes closure of stomata। ठीक है, सेकेंड लिखिए PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, it is a fungicide। फंगीसाइड जो फंगस को मारता है, it is a fungicide which promotes closure of stomata, which promotes closure of stomata। सिलिका जेल, it promotes partial closure of stomata, it promotes partial closure of stomata। ठीक है, अब हम लोग वापस उस थ्योरी में आते हैं, ट्रांसपरेशनल पुल थ्योरी में। अब एक बार में समझ में आ जाए, जहां पे कोहेशन, एडिशन, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात की है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये रूट है, सेल पार्ट है और यहाँ पे कोई लीफ। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मान लो स्टोमेटा है, ठीक है, ओके। इट प्रमोट्स पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, सिलिका जेल। इट प्रमोट्स पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, सिलिका जेल। ठीक है, तो अब ये स्टोमेटा है, तो ये हमारा क्या है, सब स्टोमेटल कैविटी। ये हमारा सब स्टोमेटल कैविटी। ओके, so now from this substomatal cavity water will be lost in form of water vapor during transpiration। ठीक है, वाटर लॉस होगा वाटर वेपर के फॉर्म में। तो जब इस पॉइंट से वाटर का लॉस होगा, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे what you will observe, water potential will decrease, क्योंकि वाटर का अमाउंट कम हुआ। As a result, it will withdraw water from the adjacent cell, जो मेसोफिल सेल इसके बगल में होगा उससे विड्रॉ करेगा लीच के, तो फिर यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो फिर वो अपने नेक्स्ट सेल से विड्रॉ करेगा, and that results in formation of a chain which runs up to the root। समझ में आया?
It will result in formation of a chain which runs up to the root, and this is referred as transpirational pull. ठीक है? And now magnitude of this transpirational pull is very high, and it can transport water in tallest possible plant up to height of 130 meter. तो इतना भी हाइट है प्लांट का, तब भी वाटर सप्लाई करते हैं। समझ में आई है सबको? समझ में आया भाई लोग? तो लिख लीजिए इसको, राइट डाउन, लिख लीजिए इसको, फिर बस हो जाएगा। राइट डाउन, loss of water from substomatal cavity, loss of water from substomatal cavity results in decrease in water potential, results in decrease in water potential. As a result, अरे स्टोमेटा के नीचे जो कैविटी होता है उसको सबस्टोमेटल कैविटी कहते हैं लीफ में। Loss of water from substomatal cavity results in decrease in water potential. As a result, it withdraws water from adjacent cell, This results in formation of chain. Which runs up to a root. This results in formation of chain which runs up to a root, and this is known as transpirational pull. This is known as transpirational pull. Magnitude of transpirational pull is very high, and it can transport water in tallest possible plant as tall as 130 meter. As tall as 130 meter. जल्दी से डायग्राम बना बन जाए तो बता दे। हो गया? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। अच्छा 1 मिनट, कल मैं आपकी क्लास नहीं लूंगा, आपकी क्लास कल वाली मैं संडे को लूंगा शाम को, ठीक है? कल शाम को क्लास नहीं लूंगा, मुझे कहीं जाना है, तो संडे को शाम को आपकी क्लास लूंगा। सैटरडे भी नहीं रहूंगा, तो मैं संडे को लूंगा आपकी क्लास, ठीक है? थैंक यू। हाँ मुस्कान, लेकिन क्या बोलो सर? लेकिन क्या? टेस्ट कितने बजे से है? कितने बजे से है टेस्ट? अरे 10 बजे से है ना। शाम को लूंगा बोल तो रहा हूँ यार, शाम को 5:30 बजे आपकी क्लास तो नहीं होगी ना? टेस्ट तो नहीं है ना? चलो, थैंक यू।